آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ وہ کیسے شہید ہوگا؟ اگر امریکی شہید نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینے والا بھی شہید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک ہی مقاصد ایک ہی اہداف کے لیے ہوتا ہے۔ پاک فوج کے ادارہ ISPR کے جاری کردہ سیاسی اور غیر فوجی پریس ریلیز پر اجلاس نے اظہار کیا کہ فوج کو یہ حق نہیں کہ براہ راست سیاسی اور جمہوری معاملات میں مداخلت کرے۔ السلام علیکم ناظرین، بحث آج اس ملک میں یہ ہے کہ حکیم اللہ محسود شہید ہے یا نہیں۔ اس سے بڑی بحث اس ملک میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے جان دی، جنہوں نے یونیفارم پہنا تھا، جن لوگوں نے 30-40 ہزار لوگ، چاہے وہ سویلینز ہوں یا فوجی، وہ شہید ہیں یا نہیں۔ یہ بحث اس لیے چھڑ گئی کہ منور حسن صاحب کا جو آپ نے بیان تھوڑی دیر پہلے سنا، ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان لوگوں کو شہید نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ اس کا جواب فوج نے یوں دیا کہ ملک دشمن جو لوگ ہیں، طالبان کو انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں ہمارے لوگوں کی جو قربانیاں تھیں اس پر جماعت اسلامی اپنا موقف واضح کرے اور اس پر معافی مانگے۔ کیا یہ بحث اس ملک میں اس وقت کیوں محسوس ہوا کہ ہم یہ تقسیم کریں کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ زاہد خان صاحب، سینیٹر زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سیکرٹری اطلاعات ہے عوامی نیشنل پارٹی کے شاہد لطیف صاحب، دفاعی ترجیح نگار، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سراج الحق صاحب، سینئر وزیر خیبر پختونخوا کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر۔ آج کل آپ کی جماعت کو ذرا تھوڑے سے زیادہ جواب دینے پڑ رہے ہیں۔ اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا سے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ سر۔ یہ دہشت گرد کی تقسیم کوئی تعریف کو ہم کنفیوز کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کا خیال ہے حکیم اللہ محسود صاحب دہشت گرد ہیں اور طالبان دہشت گرد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کو قوم کو ضرورت کیا ہے۔ قوم کی ضرورت اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو شہید قرار دے حکیم اللہ کو یا شہید قرار نہ دے۔ قوم کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو امن کا تحفہ دیا جائے۔ وہ امن ہمیں کس چیز میں مل سکتے ہیں؟ کیا کسی کے لیے جہنم مقرر کر کے یا جنت مقرر کر لے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ بحث، یہ سوال وہی سوال ہے جو بغداد میں لوگ کرتے تھے جب تاتاری آئے تھے، تو شاید اس وقت کاشف عباسی نہیں تھے، لیکن آپ کی طرح کچھ انکر ہوں گے، یا علماء تھے یا مفتی صاحب۔ آپ جیسے علماء تھے جو یہ بحث کر رہے تھے کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے مولانا، یا ہم جیسے لوگ نہیں تھے، آپ جیسے لوگ بیٹھے تھے اس وہی وقت کعبہ کے بارے میں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، اسی طرح بحث چل رہی تھی، اور تاتاری آئے، انہوں نے بغداد پر قبضہ کیا۔ اور اندر ایکچولی آپ کو معلوم ہے اس بات کا، جب تاتاری آئے ہیں تو اس وقت بغداد کے اندر یہ مناظرہ چل رہا تھا، بحث نہیں چل رہی، مناظرہ چل رہا میں کہتا تھا، ہوں، اور مناظرے میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کعبہ حلال ہے یا حرام۔ کاشف، تو کیا ہمیں تاریخ سے سبق نہیں اور لینا ہے؟ پیچھے سے ادھر ہمارے 40,000 بندے مر گئے اور ہم آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ شہید کون ہے اور دہشت گرد کون ہے۔ یا ہمیں نہ کہیے، آپ کو ہی جواب دینا ہے، آپ ہی نے تو سوال کیا نا جی۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور جب پوری قوم یکسو ہے اس چیز پہ کہ امن کے لیے اب مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی یہی تقریر کی کہ ہمارا کام اب یہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں ایک اصولی بات کہوں گا ابتدا میں، کہ جو لوگ اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، اسلام اور پاکستان کی حفاظت میں مرتے ہیں، وہ شہید ہے۔ اس لیے کہ شہادت، اور حسن صاحب اس بات کو مانتے ہیں؟ کاشف صاحب، آپ نے پڑھا ہے شہادت کے بارے میں؟ وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی خاتون زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، اس کو بھی اسلام بہت بڑا درجہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے پانی میں، اگر کوئی جلتا ہے آگ میں، اس لیے کہ حکیم اللہ محسود صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ میں عرض کروں، میں میری بات سنیں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہ وہ زچگی میں مرے، معافی چاہتا ہوں، نہ وہ کسی ایسی چیز میں مرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی پوزیشن۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے مرتا نا جی تو کوئی اور پوزیشن ہوتا، لیکن امریکہ نے حملہ کیا ہے، امریکہ نے ڈرون حملہ کیوں کیا ہے؟ اور آج چودھری نثار نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہم اس پہ احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت مارا گیا، اس وقت اس کو ہٹ کیا گیا جب وہ مذاکرات کی طرف چل پڑے۔ جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے گا اور شہید کہلائے گا۔ یعنی جو آدمی امن کے خاطر، جو آدمی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس لمحے کو سبوتاش کرنا یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اس پہ آئیں گے کہ لمحہ مذاکرات کا ہے اور مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ جو بحث ہے، اگر آپ ISPR کی پریس ریلیز دیکھیں، اس میں ان کو دہشت گرد کہا گیا ہے،
मैं फिर दोबारा दोहरा दूं सिराजुल हक साहब, दहशतगर्द करार दिया गया है। लिखते ये हैं कि मुनव्वर हसन इन ए टीवी प्रोग्राम डिक्लेयरिंग द डेड टेररिस्ट एज शहीद। क्या ये दहशतगर्द हैं या नहीं है सर? देखिए काशिफ, मुझे सिराजुल हक भाई से इख्तिलाफ है। वो क्यों? इसमें कोई शक नहीं है कि लोग अमन चाहते हैं, डायलॉग के जरिए चाहते हैं, उस दहशतगर्द से भी करना चाहते थे। क्या डायलॉग हो भी रहे थे, नहीं भी होते, ये भी अभी सवालिया निशान है। लेकिन आज निसार साहब ने उसके ऊपर बड़ी लंबी तकरीर की है। वो उसके तकरीर तो छोड़ दो ना, उसके तकरीर पे भी उन्होंने कहा कि जी वो तो मगरमच्छ के आंसू रो रहे, वो गलत कह रहे, हमारे पास ना बंदे आए थे ना। अरे बहरहाल उस बात में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। हमें सिर्फ ये कहना वो तो दहशतगर्द है, उसमें तो दूसरी राय है नहीं। लेकिन हम अपने लोगों को, जो हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे, जो हमारे अस्पतालों को बचाने के लिए लड़ रहे, जो हमारे मस्जिदों को बचाने के लिए लड़ रहे, जो हमारे जनाजों के, ये से गवाह, इसके अपने इलाके में एक जनाजे में सुसाइड अटैक हुआ था, उसमें कितने लोग मर गए थे? 25 थे, 31 थे, 42 लोग उसमें शहीद हुए थे। अब मुझे आप बताए कि वो शहीद थे कि नहीं थे? अगर वो शहीद थे, और जो आपकी फौज या आपकी पुलिस, जब एक बंदा चेक पोस्ट पे आ रहा होता है, उसने सुसाइड जैकेट पहना होता है और उसको गले से लगा के फाड़ देता है, आप मुझे बताएं उसको शहीद अगर आप नहीं कहेंगे तो उसके साथ जुल्म नहीं है? वो कब्र में क्या कहेगा कि मैं किस कौम में पैदा हुआ, किसके लिए मैंने अपनी जान दी थी? उनके बच्चे भी जो यतीम हो चुके, उसके बीवी जो बेवाह हो चुके, वो सिर्फ एक तसल्ली पे अपने आप को कि जी हमारे प्यारे शहीद हो गए। आपने वो शहादत का लफ्ज भी उनसे ले लोगे तो क्या रहेगा इस मुल्क के अंदर? अब मुझे बता दे, क्या उसका मुराल उसे रहेगा? या वो जो फौज अगर ये स्टेटमेंट जारी न करता तो उसकी फौजी जाके कहां से आपके सरहद पे लड़ता? आपके उन टेररिस्टों का रास्ता कैसे रोकता? आज पुलिस आपका रास्ता नहीं रोक रहे उस टेररिस्टों के, वो यही बात करते हैं कि उसका मुराल आपने डाउन कर दिया। आप कहते हैं हमारे भाई है। देखिए, डायलॉग और भाई में फर्क होता है। डायलॉग क्या जा सकते, शहादत का रुतबा हम मुराल के लिए दे रहे हैं? देखिए जी, नहीं, हमने दिया नहीं है। हमें किसने जो तो शहादत का रुतबा इसलिए देते हैं कि वो शहीद हैं, उन्होंने मुल्क के मुल्क के लिए जान दी है, इसलिए तो नहीं उनका मुराल ऊपर रहे। नहीं, देखिए मुराल तो मैं और बात से कह रहा हूं ना कि आप कहते हैं इनका जो आज स्टेटमेंट है कि फौज ने सियासी मुदाखलत की। देखिए, अगर फौज भी ये बात न करता, आप तो कह रहे हैं गद्दार है, गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने ये खुद कहा। सुन लें, मैं अब बताता हूं क्यों। कि जब एक आप अपने स्टेट के वफादार नहीं हो, अपने आइन के वफादार नहीं हो, अपने कौम के वफादार नहीं हो, अपने उस फोर्सेस के वफादार नहीं हो जो आपके लड़ रहे, हमें तो हमेशा के लिए फौज के गद्दार, और ये हमें तो कई बार मिला है। अब उस सूरत हाल में हमारा तो ये तवक्कुत होती कि सिराजुल हक साहब जैसे भाई आप जाएंगे और शुरा में बैठेंगे तो इस चीज को वायलेट कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जज्बात में एक बात आती होगी, लेकिन जब आपने उसको भी सपोर्ट किया तो इसका ये मतलब है आपकी पॉलिसी यही है। जब आपकी पॉलिसी यही है तो मुझे फिर बता दे कि मेरे पास उन लोगों के लिए क्या मैं कहूंगा, जवाब क्या है? 40,000 पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए क्या जवाब है? फिर मैं आपसे पूछना मजबूर हो जाएगा हमें। लियाकत बलोच साहब ने बाहर निकल के कहा कि फौज का सियासी मामलात में कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज है फौज की, जो हमारे सामने प्रेस रिलीज पड़ी है, इसके बारे में उन्होंने ये बात कही है। आपको लगता है कि ये कोई फौज ने गलत किया ये प्रेस रिलीज देकर? लियाकत बलोच साहब पहले इस बात का जवाब दें कि आप मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फौज जिसने अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए एक बात की है उसमें कौन सा सियासत है? ये जो बयान आया है उसने एक चीज जो कि आपकी तरफ से वो समझते हैं कि गलत बयानी हुई है और जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है, उस पर उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये गलत है। उन्होंने कहा है कि वो शख्स टेररिस्ट था। देखें, दिलों के भेद तो खुदा जानता है। अगर वो टेररिस्ट, हमने तो उसको उस एंगल से जज करना है जो एविडेंस है। क्या एविडेंस में आपके यहां कोई कमी है कि वो शख्स कौन था जिसने ना कॉलेज छोड़े, ना मदरसे छोड़े, ना इबादत गाहें छोड़ी, ना गिरजाघर छोड़े, ना मासूम बच्चे, औरतें, मर्द, किसी को नहीं छोड़ा। इतने ज्यादा जो हैं वो कत्ल लोग करने के बाद आप कह रहे हैं कि चूंकि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहा था आपके यहां शहीद हो गया। भाई, कौन सा मजहब है ये, कौन सा मंतक है? खुदारा 20 करोड़ अवाम जो इस मुल्क के हैं, और ये फौज जिसने कुर्बानियां लगातार दी हैं पिछले 10 साल से, आपने एक स्ट्रोक में 2 इतने बड़े मसाइल खड़े कर दिए इस कौम के लिए। यानी फौज को एक्चुअली आपने डिमोरलाइज कर दिया। ये बात बिल्कुल सही हुई। जो उन गरीब
फौजियों के फैमिलीज के लोग होते हैं, जब वो डिफेंस डे मनाया जाता है, कभी आप उनकी बातें सुना करें, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो बड़े सहारे से खड़े होकर वहां कहते हैं कि क्योंकि हमारा सरबराह शहीद है, हम अपनी सारी उम्र इस नाज और मैं मौलाना फख्र से गुजार देंगे। सिराजुल हक साहब से मैं शौकत यूसुफ साहब के पास भी जाना चाहूंगा। जाहिर है तहरीके इंसाफ का भी मौलाना नहीं है, ठीक, फैजल हक से मैं सिराजुल हक साहब फौजी शहीद हैं या नहीं है, पहले ये तो क्लियर करें ना अर्ज करूं सर, हाँ या ना में जवाब देना ताकि मैं आगे भी जा दूं। मैं बिल्कुल कहता हूं कि हैं। एक सेकंड, मुझे ये मुनव्वर हसन साहब का बयान, काशिफ भाई मुनव्वर हसन साहब का बयान सुन लेना, मेरी बात नहीं सुनते, उसके बाद आपका जवाब। मेरी बात पहले सुन ले। मैंने इब्तिदाई में कहा कि पाकिस्तान एक मस्जिद है और इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए जो भी लड़ता है मरता है वो शहीद फिर है। रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है, ये कौन सी जमात इस्लामी? नहीं सर, मैं माफी चाहता हूं आपको, इसके बाद आपका मौका है, मुझे इस बयान को जस्टिफाई कर दें आप जरा। चलाइए जी, मुनव्वर हसन साहब ने कहा ये जो पाकिस्तानी फौजी जो तहरीक तालिबान के साथ लड़ते हुए मर रहे हैं, हम उनको शहीद समझे या नहीं? आप जो भी जवाब देना चाहते हैं। नहीं, देखिए ना, ये तो प्रॉब्लम है, और मैं जरा इससे एक कदम आगे बढ़कर बात करता हूं कि जब इस इलाके के अंदर लड़ने वाला अमरीकी जब मरता है तो शहीद नहीं होता हम सबके नजदीक। तो इस एतबार से जो उस अमरीकी फौज का साथ देता है और अमरीकी फौज के मकासद को पूरा करता है और अमरीका की डिक्टेशन पर और डू मोर पर अमल करता है, मेरे नजदीक तो सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि अमरीकी तो मरे तो वो अपनी जिल्लत की मौत मरेगा, और उसका साथ देने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, इंटेलिजेंस सपोर्ट करने वाला, हर तरह की हमनवाई करने वाला, वो कैसे शहीद हो सकता है? सर, मुनव्वर हसन साहब का ये बयान आपकी पार्टी की पॉलिसी है या नहीं है? काशिफ साहब, मैं जमात की बात करता हूं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि जो फौज, जो सिविलियन, जो सिपाही इस्लाम और पाकिस्तान के खातिर लड़ता है, मरता है, वो शहीद है। तो मुनव्वर हसन साहब किसकी बात कर रहे हैं? हम उन लोगों की बात करते हैं सलीम साफी साहब का इंटरव्यू है, जिन्होंने अपनी क्या कोई कंफ्यूजन है? आप मुझे सुनते नहीं है सर, मैं बता सर, मुझे इतना बता, इसमें कोई कंफ्यूजन है? काशिफ साहब, मैं कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम उसकी बात करते हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने 600 पाकिस्तानियों को पकड़कर गुंटानामा में भेजा, पाकिस्तानी नहीं, जिसका नाम परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तानी नहीं, जो एक टेलीफोन पे ढेर हो गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान की फिजाएं, सड़कें और बहरियां। लेकिन इसका ताल्लुक क्या नहीं? आप अभी यही कह रहे हैं कि वो फौजी, उन फौजियों को आप ये कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है? वो परवेज मुशर्रफ की बात करते हैं। लेकिन देखिए, कल सलाला का वाकया होता है काशिफ भाई, कल सलाला का वाकया होता है, मुनव्वर हसन साहब ने मजम्मत की। अभी हमारे दिल्ली में मेजर जनरल सना साहब शहीद हो गए थे, उनको हमारे लोग फातिहा पे गए, हमारे लोग। आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे। आज आपकी पूरी शूरा का इजलास हुआ है, क्या उस इजलास में ये बात हुई कि हम ये बयान वापस लें और ये फौजी शहीद? मेरी जमात का मौका आज भी अभी सर नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं जो मेरी जमात का, कि जो भी इस्लाम और पाकिस्तान के खातिर लड़ता है, मरता है, वो शहीद है। लेकिन शहादत का फैसला अल्लाह के हाथ में, ये मेरे और आपके कहने से या किसी और मुफ्ती और आलिम के कहने से नहीं होता है। हकीमुल्लाह महसूद को शहीद का दर्जा आपने कैसे दे दिया? सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं? कि अपनी बात वो करते रहते हैं, कौन शहीद है कौन नहीं है, इसका फैसला क़यामत में होगा। सर, फिर मुनव्वर हसन साहब ही ने ये फरमाया कि वो शहीद है? मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि वो शहीद। मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी बात है, उनका। मैं जमात की बात करता हूं कि जो आदमी इस्लाम और पाकिस्तान के खातिर लड़ता है और मरता है, वो शहीद है। आप, जब मैं उसको शहीद कहता हूं, बार बार कहता हूं, आप फिर क्यों मुझ पे अपनी मैं ये मुनव्वर हसन साहब को सुनता हूं और वो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये फरमाते हैं। एक तरफ से आप कहते हैं कि ये अल्लाह का फैसला है, कुरान इसके बारे में बहुत क्लियर है, बिल्कुल ठीक है जी, और दूसरी तरफ से आप फैसला भी देते हैं उसको। और देखिए, जब आप पूछते हैं कि ये शहीद है कि नहीं है, मैं कहता हूं अल्लाह का इस्लाम और पाकिस्तान के खातिर लड़ता है, फिर कहें और मरता है। इन फौजियों के बारे में भी कहें, उस शख्स के बारे में भी कहें, ये अल्लाह के फैसले हैं। हम इसमें राय नहीं करेंगे, एक के आप राय भी देते हैं और उसके बाद जब आप पूछते हैं, जब आप पूछते हैं नहीं, जब आप पूछते हैं दहशतगर्द, उसको कहते हैं ये शहीद है। काशिफ साहब, ब्रेक के बाद अगर इजाजत दें, है मुसलमान का जिहाद और तक़वा। एक सेकंड में अगर शायद जाहिद साहब, मैं एक मुसलमान का ये अकीदा है कि बेगुनाह शख्स जिसको भी मारा जाए वो शहीद है। ये है कि नहीं है? मैं तो आलिम नहीं हूं, वो तालिम है, मुझे ये बता दे। ब्रेक के बाद जवाब लूंगा, ब्रेक के बाद सर जवाब लूंगा। बेगुनाह को आप मारे गए, उसको आप शहीद नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? कैसे आप शौकत यूसुफ साहब भी मेरे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें बयान मुनव्वर हसन साहब का, और आज जमात इस्लामी की शूरा का इजलास भी हुआ, उसके ऊपर भी आऊंगा। मैं इज़ा तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर ले लूं अगर इजाजत नहीं। ज़ाहिर है वो भी इसी जंग में और जमात इस्लामी के हलीफ भी हैं, इस वक्त हुकूमत में इत्तेहादी हैं। शौकत यूसुफ जही साहब, आपको क्या लगता है ये बयान ठीक है, फौजी शहीद है या नहीं है? देखिए काशिफ साहब, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल से ये ऐसी बहस है कि इसमें किसी आलिम को, मुफ्ती को अगर आप बुला लेते, क्योंकि ये तो कोई सियासत नहीं है ना कि हम किसी को शहीद कर दें, किसी को कहें कि जी ये शहीद नहीं है। हमें तो किसी ने ये हक नहीं दिया है, ना हमने इसमें कोई PhD। चले, मैंने आपकी बात ही मान ली। मुझे ये बताइए कि क्या हकीमुल्लाह महसूद दहशतगर्द है या नहीं, क्योंकि ISPR की प्रेस रिलीज उसको दहशतगर्द कह रही है। इसका जवाब तो दे। ये देखिए, जब ISPR ने कहा है तो आप ये उनसे पूछ लेना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि देखिए ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस वक्त आप ऐसे इशू को उठाकर ले रहे हैं कि हम चीजों को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात ठीक हो जाए यहाँ पे। मैं सिर्फ आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ साहब, इस मुल्क की फौज हकीमुल्लाह महसूद को दहशतगर्द पूरे आधे घंटा आपने मुझे इंतजार कराया, तो मेहरबानी कर आप सुन लें। सर मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब नहीं दे रहे। पुख्तून जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, नहीं, आप अपने सवाल बेशक करें, आपको क्योंकि आपका उसका मसला है, आप, लेकिन जो मैं आपको मुझे कोई मसला नहीं मुश्किल से है। गुजर, ये तहरीक इंसाफ का बड़ा गलत इंप्रेशन डाल रही है कि कोई डॉलर का मसला है या कोई रेटिंग्स का मसला है। तो हम इस मुल्क में कंफ्यूजन डाल रहे हैं। आप कौन दहशतगर्द है, कौन नहीं है, कौन शहीद है, कौन नहीं। आप ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम इस वक्त चाहते हैं कि अमन, इस वक्त हम चाहते हैं कि अमन आए, इस वक्त हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। आप लोग जो वहां बैठकर इस चीजों को उठाकर एक चीज को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये इस वक्त ये इतना हसास इशू है। आप जिस तरफ इस चीज को ले जा रहे हैं, फौज और पार्टियों को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, इस तरफ दूसरी तरफ दूसरा एक ऐसे मुकाम पे इस इशू को ले जाना चाहते हैं जब बिल्कुल बंद गली हो जाए। हम चाहते हैं इसमें हमारा बिल्कुल टोटली मौका बदले। हम चाहते हैं कि हालात को बेहतर करें। जिन मुश्किलात में ये सूबा घिरा हुआ है, जो मुल्क घिरा हुआ है, इसको निकलने की जरूरत है, इसको निकालने की जरूरत है। लीडर ये नहीं होता है कि आप जिस तरह पॉपुलर चीज को उठा लें और आप पॉपुलर चीज के पीछे भागें कि जी आप ये कहें, आपको लोग शाबाशी कहेंगे। देखो इमरान खान, लतीफ साहब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, जरा उसका जवाब दे दें। चाहिए, और आज भी उसका स्टेटमेंट है। एक सवाल कौन होता हूँ, अथॉरिटी है। एक सवाल, ये सिराज साहब बैठे हुए, इन्होंने भी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि इस वक्त हमें अमन की बात करनी है। भाई मान लिया अमन की बात करनी है, सारी कौम अमन चाहती है, 10 साल से यहां खून खराबा हो रहा है, अमन की बात कर रहे हैं, और एक इतना बड़ा ये शगुफा छोड़ दिया गया है कि कौन दहशतगर्द है और कौन शहीद है। तो ये डिबेट किसने शुरू मुझे बताएं ना, ये डिबेट किसने शुरू की? आप मुझे अपना नहीं, कौन को जवाब दीजिए। कौन भी अमन चाहती है, ये डिबेट किसने शुरू की? ये इतना बड़ी स्टेटमेंट क्यों आई? इसका जवाब तो चाहिए ना जी। देखिए किस मकसद के तहत ये किस तरह अमन चाहते हैं, मैं ये तो फैसला ये तरीका है अमन का, है ना साहब, ये तरीका फैसला आपको दिया हुआ है। APC ने फैसला इख्तियार आपको दिया है, लेकिन ये इख्तियार तो नहीं दिया कि ये फैसला भी करे APC के या सियासतदान ने करना है ना। शहीद कौन है, दहशतगर्द कौन अमन है, तक पहुंचने का ये रास्ता है। देखिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भाई, आप हमारे मुंह में कोई चीज डाल के उसका जवाब ना लें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम अमन चाहते हैं थ्रू मुज़ाकरात। आप हमें बताएं, जिनको एतराज है आप हमें बताएं कि अमन कैसे आ सकता है, आप बता दें हमें। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुद प्रो पीस और मैं मुज़ाकरात का हामी हूं। मैं ये बात आज भी कह रहा हूं, आप बताएं, पहले दिन से कहता आ रहा हूं, आपके अमन आएगा। जाहिद खान साहब, मैं ये दोबारा रिपीट कर दूं, हम सारे मुज़ाकरात, मैं कहूं उसका मुज़ाकरात का हामी हूं। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन कायम करने का जो तरीका आपको बेहतर लगता है, आप उस तरीके पे अमन कायम करें, वो करें। आपके पास मैंडेट है। पर ये क्या डिबेट है? ये क्या डिबेट है सर? अगर फौज और तालिबान की लड़ाई हो जाए आपस में, मैं किसको शहीद समझूं और किसको ना समझूं? मुझे ये किस तलावा में डाल दिया? कौन सा मौका है ये वर्डिक्ट देने का? ये मौका कौन सा है? अमन के लिए तो कोई भी इंकारी नहीं है, बातचीत से भी कोई इंकारी नहीं। FAC जब बुलाई गई तो हमने इसलिए कि हम पे ये इल्जाम था कि ये डायलॉग के जरिए मसाइल को हल नहीं करते, इसलिए हमने ब्लैंक चेक दे दिया कि करो। अब मुझे ये बता दे, वो तो डायलॉग अपनी जगह पे, वो एक साइड पे, अभी दूसरे साइड पे आओ। जब आपकी पुलिस मर रहे जिसको मार रहे, जब आपकी फौजी मर रहे जिसको मार रहे, और आप कहते ये शहीद नहीं है। मसला अभी बात इस पे है, उस पे नहीं है। डायलॉग पे या अमन पे कोई भी दो राय नहीं है, उस पे राय यही है कि बात होनी चाहिए। लेकिन क्या जो एक दहशतगर्द है उसको आप शहीद करार देते, जो आपके फौज
آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کے مسجدوں کو بچانے کے لیے, آپ کے امام بارگاہوں کو بچانے کے, آپ کی مسجدوں کو, آپ کی جنازوں کو بچانے کے لیے اپنا سینہ تام کے اس کے گولی کار ہے, اور آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ شہید نہیں, آپ مجھے بتا دیں اس کا آپ کیا اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے اور کیا چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا اور یہ سننے والوں کو کیا میسج جا رہا ہے جائے گا. اور وہ جو لوگ جن کے صاحب آتا ہوں آپ کے پاس, جن کے لواحقین بیٹھے ہوئے اور وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جی ہم تو چلو اور کچھ نہیں, ہمیں شہادت ملی, اس شہادت کو آپ متنازعہ بنا رہے ہو اور آپ پھر کہتے کہ اس پہ بات نہ کرو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کتنی مشکل پوزیشن میں آپ نے سب کو ڈال دیا ہے, خصوصاً آپ نے. میں آتا ہوں آپ کے پاس, ایک اور سوال آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں. اتنی مشکل جگہ پہ آپ نے اور اتنی مشکل پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے, جہاں پہ اگر ہم یہ سوال بھی آپ سے پوچھیں کہ جو فوجی لڑ رہے ہیں کیا وہ شہید ہیں یا نہیں, اور آپ کہتے جی آپ وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے ڈالر لے رہے ہیں, یا آپ جیسے لوگ یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس ملک کو اس کام میں لڑا رہے ہیں, اور وہ ٹویٹر کے اوپر جو آپ کے فالوورز ہیں پھر دوبارہ اس غلط بحث میں شروع ہو جائیں گے. یہ غلط نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی جان اگر اس ملک کے لیے دیتا ہوں, مجھے پتا تو ہونا چاہیے میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, میرا سٹیٹس کیا ہے؟ میں جہاد میں ہوں, میں ایک غلط جنگ لڑ رہا ہوں, کیا مجھے ہتھیار اٹھانا چاہیے, کیا مجھے ہتھیار پھینک دینا چاہیے؟ آج اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے, کل کس طرح فوجیوں کو کہیں گے جا کے لڑو؟ اسی فوج نے تو لڑنا ہے. فوجی لڑے گا کیسے جا کے, جس کو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہیں جو لوگ امریکہ کے ہاتھوں ہمارے ساتھ, یہ کنفیوژن ہے اس ملک کی. بہرحال ایک اور ایشو چھوٹا سا شرمیلا فاروقی صاحبہ کو سائڈ لائن پر لینا ہے, کیونکہ آج سندھ اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی ریزولوشن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں یہ فوج کا جواب آنے کے بعد ہی ہمیں ریزولوشن کی یاد آتی ہے. یہ شہید تو حکیم اللہ محسود کو 10 دن ہو گئے انہوں نے قرار دیا ہوا ہے. آج آپ کو یاد, سارے معافی چاہتا ہوں, سیاستدان اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ آج فوج نے بیان دے دیا. فوج بیان نہ دیتی اس کے اوپر آپ نے پھر بھی نہیں اٹھنا. کاشف صاحب ایسی بات نہیں ہے. جس دن منور حسن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا, سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کنڈیم کیا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے. ریزولوشن آج اس لیے آیا کیونکہ اسمبلی کا آج پہلا دن تھا, پہلا سیشن تھا, اور آج ہی اسمبلی بلائی گئی تھی. اگر یہ 2 دن پہلے بلائی جاتی یا 3 دن پہلے بلائی جاتی تو ہم اس دن ریزولوشن. اچھا, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب عمران خان کو طالبان خان کہتے ہیں وہ آپ کی آفیشیل پوزیشن ہے؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ حقائق پہ مبنی ہے. میرا خیال ہے کہ صرف ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو طالبان کہتے ہیں, ہم سب یہی کہتے تو ہیں. پھر آپ اس مذاکرات کا حصہ کیوں ہیں جس کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹر پہ اتنے خلاف ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹس پڑھی ہیں آپ نے, وہ ان مذاکرات کے خلاف ہیں, آپ ان مذاکرات کی حمایت کیوں کر رہے تھے؟ کاشف صاحب ایک بات تو میں بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خلاف مذاکرات کی بات کریں, دہشت گردی پہ سائڈ سٹیپ لے کریں, دہشت گردی پر مذاکرات پر ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم ان دہشت گردوں سے لڑنا چاہتے ہیں, ہم لڑتے لڑتے. تو پھر مذاکرات کی حمایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مینڈیٹ اس وقت عوام نے مسلم لیگ نواز کو نہیں, دیا ہے. عوام نے نہیں, آپ نے دیا ہے مینڈیٹ. اے پی سی میں عوام نہیں تھے, عوام کے نمائندے تھے جو آپ لوگ ہیں. پارٹیز نے دیا ہے, دیا نا زاہد خان صاحب, انہوں نے پارٹی نے دیا ہے, ہم نے حکومت کو, پارٹیز نے اے ایم پی نے دیا, انہوں نے دیا. اب یہ سیاست ہمارے خلاف تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا بھی یہ پوزیشن نہیں تھی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دے دیا, انہوں نے بھی دیا, یہ اب آ کے پیچھے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیا. دیکھیے ہم اس حکومت کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو نواز لیگ ہمیں یہ کہے کہ نہیں جی پیپلز پارٹی مخالفت کرتی تھی اس لیے ہم ڈائلاگ نہ کر سکے. جس طرح آج کہہ رہے ہیں جی وہ ڈرون اٹیک ہو گیا اس لیے پیس پروسیس. دیکھیں عمران خان اور نواز شریف صاحب آپریشنز کی مخالفت کرتے تھے, لیکن آپ نے کیے, آپ کی حکومتوں نے کیے ہیں. یہ مجھے یہ سیاست میں بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, اس ساری گفتگو ہم اس پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ سر یہ سیاسی پوسچرنگ ہو رہی ہے. جی, کرتے کچھ اور ہیں, کہتے کچھ اور ہیں. اس طرح تو یہی آگے مذاکرات میں, اگر آپ کا دل ہی نہیں مذاکرات کے اندر, مذاکرات چلیں گے کیسے زاہد صاحب؟ ٹھیک ہے, کیسے آپ مینڈیٹ دے سکتے ہیں؟ آپ کو مینڈیٹ کو نہیں. تو جب تک آپ یہ نہیں ٹھیک کرتے, بائی دی وے یہ پچھلی حکومتوں میں یہی ہوتا آیا ڈرونز کے اوپر کہ آپ کی پبلک پرائیویٹ پوزیشننگ ڈفرنٹ تھی. آپ اپنے عوام کو یہ کہتے رہے کہ ہم ڈرونز رکوانے کے لیے پورا ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ کہتے رہے ڈرونز بھیجیے, ہم مذمت کرتے رہیں گے. بھائی تو نئی حکومت کے ساتھ کوئی چیز چینج ہوئی ہے عوام سے؟ اب تو بات تو سیدھی کریں. اب آپ اے پی سی کے بھی معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے صرف یہ کرنے کے لیے کہ حکومت ہمیں برا نہ کہے ہم نے اوکے کر دیا, ادروائز دل سے ہم مذاکرات کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر یہ مذاکرات کدھر جا رہے ہیں؟
اور پھر اس کے پیچھے کتنی سپورٹ ہے پھر عوامی، اگر آپ اور یہ منافقت ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکلی یہ منافقت ہے، عوام کیا توقع رکھے گی آپ سے؟ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم مخالف نہیں تھے، لیکن ہم نے ڈائلاگ کیا تھا، اس کا رزلٹ کا ہمیں پتہ تھا کہ کیا رزلٹ نکلے گا، اس لیے ہم نے ان کو کہا، لیکن یہ لوگ ہم پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے، یہ امن نہیں چاہتے ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کر سکتے آپ کر لیں، ہم آپ کو اختیار دے دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم نے اسی میں بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ سر، آج آپ کی جو شورا کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں یہ ممکن تھا کہ آپ اس بیان کو واپس لے لیتے، آپ نے یہ بیان واپس نہیں لیا۔ ساجد الحق صاحب، دیکھیے، جماعت اسلامی کی ایک ہسٹری ہے، ساری قوم کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ حال میں آ جائے سر، ماضی تو ہمیں پتہ ہے، حال کی بات کر میں حال کی بات بھی کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی ایک تسلسل ہے، سلالہ سے لے کر جنرل ثناء اللہ شہید کی شہادت تک مسلسل ہم نے ان واقعات کی مذمت بھی کی، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ابھی میاں والی میں نوجوان شہید ہو، ہماری مرکزی قیادت وہاں گئی ہے، ہم اس کو قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو ہماری اسٹیٹمنٹ میں ہے، جماعت اسلامی ہی ہے جنہوں نے 71 میں بھی مشرق پاکستان کو بچانے کے لیے 10,000 نوجوانوں کی قربانی دی ہے۔ کون ہے جس کی قیادت آج بھی پانسی گھاٹ میں ہے بنگلہ دیش میں؟ جرم یہی ہے کہ انہوں نے بیان پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے 71 میں پاکستان بچانے کے لیے فوج کا ساتھ دیا تھا، اور 85 سالہ بوڑھا آج بھی وہاں جیل میں پڑے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، منور حسن صاحب کے بیان کے ساتھ منور حسن صاحب کا آج بھی مطلب یہی تھا، انہوں نے وضاحت کی کہ بھئی فضائی سپورٹ دینا، سڑکیں دینا اور نیٹو فوج کو سہولتیں دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بھئی یہ اس فوجی کا مسئلہ ہے، یہ تو آپ کو پالیسی کا پرابلم ہے نا، تو جن کی پالیسی ہے آپ ان سے جنگ کریں۔ یہ فوجی، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ ہم پھر سے ڈیویشن میں چلے گا، میرا مقصد یہ ہے۔ جن کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اس موٹو کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کی اس ایکشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم پالیسی کے خلاف ہے۔ کون سی پالیسی؟ جو پرویز مشرف نے بنایا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے 50,000 لوگ شہید ہو گئے۔ ہم اس پالیسی کی مخالف ہیں اور عوام بھی اس کی مخالف ہے۔ گاؤں والے یہ فیصلہ کرے۔ دیکھیں، اس کے 17 امینڈمنٹ پاس کروانے میں انہوں نے کروایا، اس کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو بشمول امریکہ کو آڑے دینے، بشمول نیٹو کو سپلائی کرنے دینے، بشمول اس کے یہاں سے ساری سپلائی جانے کے لیے کس نے آئینی اور قانونی تحفظ دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں دیا تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں ہم بھی گئے تھے، جھیلوں میں گئے تھے، احتجاج کیا تھا۔ اور کیا زاہد بھائی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں وردی چھوڑوں گا، میں سویلین بنوں گا، اور اس وعدے کی بنیاد پر 17 آئینی ترمیم پاس ہو گیا تھا، اور جس کا تسلسل ہے آج جس کے بارے میں اعتزاز احسن آپ کو بار بار کہتے رہے مت کریں، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، لیکن آپ اعتزاز احسن صاحب نے انہوں نے کیا ہے، اعتزاز احسن صاحب کو بھی سب جانتے ہیں۔ شوکت صاحب، اصل مسئلہ کنفیوژن کا، یہ جو بیانات ہیں یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ میں پھر کہہ دوں، آج بھی اسمبلی میں اس بات پر بار بار یہ بات ہوئی ہے، قومی اسمبلی میں، کہ مذاکرات پر قوم رضامند ہے۔ اس بات کو سائڈ پہ کر لیں، قوم پر بار بار لوگوں پر الزام مت لگا کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں، نہیں، خلاف کوئی نہیں ہے، صرف تھوڑی کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ، یا جس کو قوم کو جس کے ساتھ 9 سال تک لڑاتے رہے آپ، کیا وہ لڑائی ٹھیک تھی یا یہ لڑائی ہی غلط ہے؟ اس چیز کو اتنا کنفیوژن کیوں پھیلایا جا رہا ہے کہ جی آپ کون مذاکرات کا حامی ہے یا مخالف ہے؟ دیکھیں، کنفیوژن تو میرے خیال سے آپ لوگ پھیلا رہے ہیں نا، کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے ہم سارے حامی ہیں، دوسری طرف آپ جس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ متنازع بنا کے ہوا کھڑا کرنا ہے۔ ایک چیز ہے، وہ تو حقیقت ہے، سب کو پتا ہے۔ اب یہ جو فوج کے بیچ میں آپ نے بات کہی، تو فوج کون مانتا ہے کہ فوج شہید نہیں ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ بیچارے اتنے جو فوج ہے، پولیس ہے، ہماری قوم ہے، یہ جو 50 سال اس میں سارے شامل ہیں، سب نے قربانی وہی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، اب جب آپ مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ تو پھر یہ میری بات ہے، منور حسن صاحب نے غلط بیان دیا۔ ماحول ہم نے خراب کیا ہے، ماحول کس نے خراب کیا؟ وہ تو ان کی پارٹی ہے، ماحول تو ڈون حملے نے خراب کیا نا، امریکہ نے خراب کیا۔ نہیں، دیکھیں،
नहीं देखे सर, मुनव्वर हसन साहब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो मेरे से ज्यादा उनका तजुर्बा है। मैं तो वो अपनी बात करूंगा, पार्टी की बात करूंगा। देखिए हम उस चीज में नहीं पढ़ना चाहते, हम ये कहते हैं कि माहौल को साजगार बनाए। अब मुझे समझ नहीं आती है कि जाहिद साहब यहाँ बैठे हैं, जाहिद खान साहब, वो एक तरह इस तरह बात करते हैं कि वो आगे से आपके पहिया ही आगे ना चले, तो कैसे हालात ठीक होंगे? आप जब आगे आप उनको क्या कहा आपने कि पहिया नहीं चले? उस पे पहिए पे मैं कोई मतलब किस तरह मुज़ाकरात के लिए माहौल तो बनाएंगे ना। क्या बात हम तो चाहते हैं कि माहौल, हम देखें हमने इखलास किया है सर, ये शहीद कहने से फौज को शहीद ना कहने से माहौल बनता है। ये बता दे कि चार पुलिस वाले जो मारे गए पेशावर में, और आके उनके घर वालों ने धरना दिया रोड पे, क्यों दिया? ये मेरा सवाल से यही क्या मांग रहा है था कि क्या आप माहौल इस तरह बेहतर बनाएंगे कि जो दहशतगर्द हैं उनको पहले हीरो बनाएं, कहेंगे वो शहीद हैं, और जो लड़ते रहे और कुर्बानियां देते और ये देखे यार बात तो सुन ले भाई, बात तो सुन। शौकत साहब मैं इसका जवाब आप ही से लेता हूं। नहीं, बात तो शौकत साहब इसका जवाब आप ही दीजिएगा, सुन ले, गुफ्तगू सुन ले। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस पिछले 10 साल से हैं, आप उनको शहीद कह के क्या आप उनकी पहले सपोर्ट करेंगे ताकि वो आए और वाकई उनकी जो हाइनेसेस हैं वो टेबल पे बैठे, और आप अपनी फौज को डिमोरलाइज इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो क्या फौज इस काबिल ना रहे कि वो बात करे जनाब इनको फोर्स इस्तेमाल करनी है? ये दोनों एंड्स पे आपका जो बयान है ये बहुत मुश्तबा बयान है। ये इस तरह के बयान से क्या ऐसा तो नहीं सामने नजर आ रहा कि पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक लीड ली, कहा जी मैं इन लोगों को टेबल पे लाऊंगा, जमात इस्लामी ने देखा कि जनाब वो तो लीड ले गए, वो लोगों को मेज पे ला रहे हैं, हमें भी कोई ऐसी बात करनी चाहिए जो उनकी सपोर्ट में हो ताकि हम मेज पे लाने के काबिल। आपसी लड़ाई शुरू हो गई, सियासत है, आपसी लड़ाई सियासत है। एक सवाल, उसके लिए आप मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। शौकत साहब इसका भी जवाब दीजिएगा, इसका जवाब भी दीजिएगा। हम ये क्या, एक सेकंड, ये जाहिद साहब को सुनने, इसका भी जवाब आप ही ने देना है। क्या हालात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? क्या ऐसी फजा क्रिएट की जा रही है जिसमें मुज़ाकरात ही ना हो सके? देखिए जी, वो अटैक कर गए चर्च पे, वो किस अखवानी में, वो बस पे, वो वजीर को, वो हमारे जनरल को मारे, हालात खराब नहीं हुए। अब वो जो हमने नहीं किया अमेरिका ने किया, और किसने कहा कि अमेरिका हमारे मुफाद की बात करेगा? किसने कहा कि अमेरिका हमें बहुत अच्छे रिस्पांस देगा? ये तो किसी ने नहीं कहा। तो ये बजा के अपने कौम पे बरसने के, अपने लोगों को गैर शहीद होने की बात कर रहे, ये बात कर दे कि बाबा आप पे भी अटैक हुए, हम पे भी हुए, और हम अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करें, आके मेज पे बैठ जाए। लेकिन बात सिर्फ ये कहना साहब का जवाब ले लो फिर कि स्कोरिंग करना, मेरे ख्याल में स्कोरिंग की बात नहीं है इस वक्त। बात किसकी है? अगर आप बात करना चाहते हैं और उसको भी इस बात पे कहे कि आपने भी 4-5 अटैक्स किए, हमने बर्दाश्त किए। जब हमने आज निसार साहब ने भी असेंबली में नहीं किया, निसार साहब ने, चौधरी निसार ने भी असेंबली में कहा ये नहीं हो सकता कि यहां डायलॉग की बात होती रही और वहां इनकार की बात होती रहे। शौकत साहब, माहौल दोनों तरफ से बनाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बशीर बलोर मारा जाए और मुज़ाकरात हो, बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया जाए, मुज़ाकरात हो, फौजी मार दिया जाए, जनरल न्याजी को मार दिया जाए, मुज़ाकरात हो, 70 बंदे चर्च में मर जाए, 40 बंदे उधर मर जाए, फिर भी मुज़ाकरात हो, लेकिन वहां पे एक आदमी मर जाए और कहे कि जी मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। ये माहौल कौन खराब कर रहा है आपका ख्याल? देखिए जी, ये तो आपको पता है कि अभी जो जिस तरफ से जिस तरह जा रही है डिस्कशन, इसका सारा फायदा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका यही चाहता था कि मुज़ाकरात ब्रेक हो जाए और कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मुज़ाकरात की तरफ बात आगे ना बढ़े। यही पार्टियां थी जो उस वक्त जाके इन्होंने क्यों मुज़ाकरात की हामी भरी। अब उसी की वो कह रहे हैं कि जी देखे उन्होंने ये जाहिद साहब कह रहे हैं हम अभी भी कायम हैं। पहले से पता था। नहीं, कायम किस तरह कायम है? आप उसकी हिमायत ही नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही कायम है। ये लोगों को धोखा नहीं दिया जाए। जो स्टैंड है, क्लियर स्टैंड के साथ आए। हमने मुज़ाकरात की बात की थी, आज भी हम इस पे स्टैंड ले रहे हैं और हम समझते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा वहां पे आप किस तरह अमन लाएंगे? बना रहे। देखिए, इल्जाम तराशी से शायद मसला हल नहीं होगा। मैं एक ब्रेक के बाद सर, ये इल्जाम तराशी से मसला हल नहीं होगा, सियासत ही हो रही है ना फिर। पॉलिटिक्स करने से मसला हल नहीं होगा। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका मुज़ाकरात नहीं चाहता। कौन देख रही ये है? बात कौन लोग पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं? जी कौम सुन रही है ना, जिस तरह के ये स्टेटमेंट्स आ गई हैं, पूरी कौम इस वक्त पूरी कौम इस वक्त अजाब में मुब्तला है। उसी मौके पे कायम है। हमने पहले भी कहा था मुज़ाकरात, आज भी कह रहे हैं मुज़ाकरात, सब यही कह रहे हैं। आज जाहिद साहब आप आज मुज़ाकरात के लिए कौन इनकार करता है? मुज़ाकरात को कौन पसंद नहीं करता यार? तो सही, लोगों को मार क्यों रहे हो, क्यों मरवा रहे हो? अजीब सी बात कर रहे हो। ठीक है सर, एक ब्रेक के बाद किसने मना किया? अगर हम जानते हैं कि अमेरिका सियासत कर रहा है, अभी आपने अमेरिका हमारे मफाद का काम नहीं करेगा, हमें पता है कि अमेरिका नहीं चाहता मुज़ाकरात करे। मुख्तलिफ लोगों ने कंडेम किया उस ड्रोन हमले को।
तहरीक इंसाफ समझती है, नून लीग की तरफ से निसार साहब समझते हैं, मियां साहब समझते हैं, ANP समझती है, तालिबान को ही समझ क्यों नहीं आ रही कि अमेरिकी सियासत और ये लोग जिनके रवाबी थे उनके साथ उनको क्यों नहीं समझा रहे? समझाएं कि उनको कि ये वो आपकी समझाए ना। सियासत है, हमारा तो रवाबी है नहीं, इन उनके पास मामला जिनके मसाइल रवाबी थे से उनको आगे समझा जाना दें। पड़ेगा। आज निसार साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, जिसने कौमी असेंबली की उनकी तकरीर सुनी हो, कि शवायद हैं, उन्होंने बराह रास्त का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा शवायद हैं कि चर्च हमले में भी यही मुलव्विस थे, शवायद हैं कि बस हमले में भी यही मुलव्विस थे। उन्होंने कहा फिर भी हमने कहा लाशें गिरनी रोकें, हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। इस हद तक खुला दिल दिखाया पाकिस्तान ने। लेट्स पुट इट दिस वे, पाकिस्तान ने इतना खुला दिल दिखाया, थोड़ा सा खुला दिल आप भी दिखाएं कि अमेरिका हमारे सारों के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस साजिश को हम नाकाम बनाने के लिए हम इकट्ठे हो जाए। उस साजिश का हम क्यों शिकार हो? क्यों शिकार हो? इस पे ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि क्या करें इस सारे का। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में सवाल शायद शहीद कौन कौन नहीं, इससे ज्यादा गलत और ठीक का सवाल है। कौन गलत है, कौन ठीक है? ये बात मुझे किसी ने कही, मैं इस बात से शायद काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं। ये गलत और ठीक की लड़ाई है ना जी, बिल्कुल। और उसमें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन ठीक है और कौन गलत है। कौन गलत है? देखिए, जाहिर है कि जो स्टेट के खिलाफ लड़ता है वो गलत है। जो स्टेट के लिए लड़ते हैं, जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, जो अपने आवाम को बचाने के लिए लड़ते हैं, जो अपने मस्जिदें बचाने के लिए लड़ते हैं, जो अस्पतालें बचाने के लिए लड़ते हैं, वो सही है। क्योंकि ये तो इतना कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको कोई समझे नहीं है, हर एक बंदे ये समझते हैं। देखिए, डायलॉग की बात करें, डायलॉग का कोई इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन जो हम पे फर्ज होता है, क्या उस दूसरे फरीक पे ये फर्क नहीं होते हैं कि अगर वो कहते हैं कि अमेरिका ने सबूटाज किया तो हम भी कहते हैं अमेरिका ने सबूटाज किया, तो क्या उनका फर्ज नहीं है कि हम अमेरिका को नाकाम बना दे और वो कहते कि नहीं जी जो इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगा। पहले तो जैसे आपने डेफिनेशन की बात की ना जी, कि बड़ा क्लियर है कि इस्लामिक स्टेट है, यहाँ की अफवाज जो हैं एक इस्लामिक स्टेट की हिफाजत कर रही हैं, इसके अंदर हम लोग मुसलमान रहते हैं, वो सबकी हिफाजत कर रही हैं, लिहाजा इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी वो जो पिट्ठू नहीं, मैं आगे आ रहा हूं, नहीं मैं ड्रोन तक तो रोक नहीं सकते। नहीं, मैं इसी की बात करने लगा हूं, एक मिनट रुकिए। इनका इल्जाम ये है कि जनाब ये फौज और ये मुल्क, ये तो अमेरिका के बिहाफ पे जंग कर रहे हैं, अमेरिकी पिट्ठू हैं और अमेरिकन जंग लड़ रहे हैं। एक बात का बड़े मुद्दबाना मैं जवाब चाहूंगा कि ये जो तालिबान है, ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? सर जवाब ले, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या ये शरीयत की जंग लड़ रहे हैं? काशिफ भाई, एक है वो तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं, उसको छोड़ देंगे, हम पाकिस्तानी तालिबान लड़ रहे हैं, वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान की बात करें स्पेसिफिक, जो यहाँ कार्रवाई होती है उसको बारे में तो हमारे पाकिस्तान के उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। ठीक, पाकिस्तान के अंदर तबलीग की इजाज़त है, दावत की इजाज़त है, रैली की इजाज़त है, इलेक्शन के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए इक़्तिदार तक पहुँचने के रास्ते खुले हैं। इसलिए यहाँ ताकत का इस्तेमाल जो है ये मुनासिब नहीं है और ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। मगर फिर भी उनका है कि शहीद है। मैं बात करना चाहता हूँ, धमके ये जो धमाके ये गलत है। काशिफ साहब देखिए, जहाँ तक ठीक है और गलत ये बात अच्छी की उन्होंने। देखिए, एक आदमी को आप उस सूरत में कत्ल सकते हैं जब उसने कोई कत्ल किया हो, जिना किया हो या मुर्तद किया हो, लेकिन ये सजा भी अदालत दे सकती है, इंडिविजुअल या कोई तंजीम नहीं दे सकती। सर मेरा आखिरी जुमला मेरा यह है कि इस मुल्क में कर तक यही भी तजाद तक कि भुट्टो को अदालत ने सजा दी थी नहीं, बट ये जवाब तो देना। देखिए, अदालत कहते थे कि ये मुजरिम है, कि ये तालिबान और किसकी लड़ रहे हैं, समझते कि ये शहीद है। शौकत साहब, मैं आखिरी जवाब शौकत साहब, मैं माफी चाहता हूं, शौकत साहब को दे दूं। शौकत साहब, ये माहौल कैसे बदला जाए अगर आपको लगता है कि अमरीकी मामला आगे चल रहा है, माहौल कैसे बदलेंगे? देखिए जी, माहौल इस तरह कि जो प्रोसेस शुरू किया गया था, वफाकी हुकूमत ने जो प्रोसेस शुरू किया था अमन का, आज भी हम उसकी हिमायत करेंगे। अगर वो प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह